Ladies and gentlemen, इंडियन खेल लीग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मणिपुर का बेहद लोकप्रिय खेल मुकना। मणिपुर का यूनिवर्सिटी ग्राउंड तैयार है, मैदान सज चुका है और खिलाड़ी मुकाबले को बेताब हैं। दर्शकों में भी उत्साह चरम पर है। मुकाबला शुरू होने से पहले सभी मेहमानों का अभिवादन और खिलाड़ियों से मुलाकात के साथ ही आगाज हो रहा है एक बेहद लोकप्रिय खेल मुकना का। ladies and gentlemen, now it's time to add golden feather on the head of success. Yes, now we are with our chief guest, Sri T.H. Biswajit Singh, Honorable MLA, Thongju constituency. Now we will have our traditional auspicious presentation of Koyet and Lingyanti to our respected chief guests. Ladies and gentlemen, the state of Manipur is known for indigenous and traditional games played by the people. Now we are presenting you Mukna. And today we begin with Mukna, the indigenous wrestling competition of Manipur. Indigenous Games Festival of Manipur. कुश्ती और मार्शल आर्ट के संगम से बने इस खेल का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। पूर्वोत्तर का ये बेहतरीन मार्शल आर्ट आज मणिपुर में शरीर को साधने का जरिया बन चुका है। ये खेल चुस्ती, फुर्ती, शक्ति और दांव पेच का अनोखा मेलजोल है। एक ऐसा खेल जो मणिपुर की संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। इम्फाल, थोबाल और विष्णुपुर में ये खेल बेहद लोकप्रिय है। ये खेल मणिपुर में होने वाले उत्सवों का एक खास हिस्सा है। And if that or two doesn't get a result, then both will be disqualified. So there is pressure on both to get a result. Right now the judge is waiting there in the middle. The chief jury is O Dharmo. Referees in the middle. You see, we'll come to that later. इस खेल में 6 मीटर रेडियस के एक गोल घेरे के बीच में दोनों खिलाड़ी आमने सामने खड़े होते हैं। इस गोले से 1 मीटर दूरी पर एक और गोला बनाया जाता है जो खेल की सीमा रेखा बनाता है। खेल के दौरान खिलाड़ी इस गोल घेरे के बाहर नहीं जा सकते। यदि किसी खिलाड़ी का पैर इस गोल घेरे के बाहर चला जाता है तो उसे फाउल माना जाता है। दोनों ही खिलाड़ियों की कमर में एक बेल्ट बंधी होती है जिसे स्थानीय भाषा में निनग्री कहा जाता है। खेल शुरू होते ही ये खिलाड़ी एक दूसरे को कमर पर बंधे बेल्ट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद रेफरी का इशारा होते ही शुरू हो जाता है खेल मुकना। इसमें दोनों ही खिलाड़ी तमाम तरह के दांव पेच का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पटखनी देने की जुगत में लग जाते हैं। And the whistle has gone, so they can leave that, do a few things. So whoever can drop the other on his back is the winner. 5 minutes time to get. There's a circle, there are 2 circles in fact, but you can't go beyond that 7 meter circle. There's another one 1 meter away, that is a diameter of 6 meters. So half a meter you get. There's sort of warning that you are going out, but right now both of them right in the middle. 6 मीटर रेडियस के इस मैदान में ताकत के साथ ही जोर आजमाइश भी शुरू हो जाती है। जो भी खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पीठ के बल जमीन पर पटखनी दे देता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। Competition in progress. You saw a little bit of this in Mukna Khongje yesterday, but only a little bit. That is how the people held on to each other. Here the aim is also to make them fall. Points will be scored only if your opponent falls. In the earlier days, this would be fought till one of the men actually falls.
But here in modern sport, or modern times I might rather say, this is an indigenous sport. You don't have so much time, so it's about 5 minutes that will be given to these gentlemen. Both of them are trying to get into a better position. There you can see them holding the kishi. The judge taking a good look. They are line judges. There you see they have come very close to the inner line. This is a view from the top, which is being taken by a drone that we are using here. Both gentlemen trying. The belt has gone up. Roman. Do we have a fall here? Do we have a fall? It depends on the... So it looks like we have a fall, and it looks like the man in red, Roman, there you see his hand goes up. So Roman goes on to the next round. A nice hug before leaving. No issues, it's a game, showing respect to the audience. Earlier days it's to be played in front of deities also. So this is one bout coming to an end. सेंटर में दोनों खिलाड़ी आबुंग और नौतंबा थोड़ा पीछे की तरफ आते हुए वहाँ पर लाल किसी बेल्ट को कहते हैं, उनका बेल्ट बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं आबुंग। ये मुक्ना खेल है जिसमें जूडो और कुश्ती दोनों की शैली देखी जा सकती है। इसी तरह का खेल हमने मिजोरम में भी देखा था, जहां पर स्वदेशी खेलों का मेला था, लेकिन वो 6 मीटर का जो व्यास है उसके अंदर अभी भी है। एक पैर बाहर जरूर आया था। वहां पर जो सेंट्रल रेफरी हैं उन्होंने वार्निंग दी कि आप बाहर आ रहे हैं। टम्पा और गुलाबी दो सेंट्रल रेफरी हैं जो सर्किल के अंदर हैं। एक वार्निंग मिली वहां पर नौतंबा को, जब उनका एक पैर जो इनर सर्किल है 6 मीटर का जो डायमीटर उसके बाहर गया था। बहुत अच्छी ग्रिप बनाए गए हैं। ब्लैक जो किशी है, ब्लैक बेल्ट में आबुंग इलंगबंग आबुंग जो कि खंगाबोक के हैं, और नौतंबा ओइनम के। 5 मिनट का ये राउंड होगा, 2 राउंड होंगे और 1 मिनट का अंतराल। और ये वहां पर कोशिश की थी नौतंबा ने। 60-40 मुकाबला कहा जा सकता है नौतंबा के पक्ष में। एक बार फिर अच्छी पकड़ वहां पर है आबुंग की। पीछे की तरफ वहां नौतंबा। ये मुक्ना खेल जो कि मणिपुर का है। एक बार फिर उनका पैर वहां पर बचाया, खुद को अपने बाएं तरफ गए नौतंबा। सेंटर में आने की कोशिश नौतंबा की, जो लाल किसी जो है अरे पटकने की कोशिश वहां पर की थी आबुंग ने, और ये घुटना उनका लगा नौतंबा का। तो ब्लैक यहाँ पर घोषित किए गए हैं, आबुंग विनर हुए। और दोनों ने यहाँ पर खुरामो किया, माने झुके दोनों वहाँ पर जो चीफ ज्यूरी हैं धर्मों के सामने। इस तरह से ये बाउट जीती आबुंग ने। और एक और ये बाउट लाल रंग की जो किसी पहने हुए बेल्ट है वो है नबा कुमार और माईपक्सना, जो कि ब्लैक जो आपके स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के बाईं तरफ अब हो गए हैं। घूमने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रिप बनाए हुए हैं वहाँ पर, बेल्ट पर अच्छी पकड़ है वहाँ पर माईपक्सना की। लेकिन पीछे हटते हुए वहाँ पर माईपक्सना खुद को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। जो 6 मीटर का रेडी और डायमीटर है, जो सर्किल है इनर सर्किल, पुल कर रहे हैं। इसी तरह का गेम आपने देखा था आइजोल में, जहाँ पर इनबोन कुश्ती जिसमें लिफ्ट करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और वो विनर घोषित किए जाते हैं।
ढीला हो गया वहाँ पर, या जो रेड बेल्ट में है नवा कुमार, उनकी किसी थोड़ी ढीली हो गई है, उसका गीटर सही तरीके से बांधेंगे। अब वहाँ पर जो सेंट्रल रेफरी हैं, 2 सेंट्रल रेफरी रहते हैं इसमें, एक हैं यहाँ पर टंपा, दूसरे गुलाटी, और चीफ जूरी हैं धर्मो। लाइन जज हैं जीवन, 2 लाइन जज हैं, जीवन और चंद्रमोहन। एक बार फिर रेफरी ने गीट देखी, मजबूती से उसे बांध दिया, और एक बार फिर पुल करने की कोशिश, ग्रिप फिसलती हुई वहाँ पर नवा कुमार की, लेकिन एक बार फिर बनाने की कोशिश, वहाँ पर नवा कुमार हाथ फिसलता हुआ, नवा कुमार का पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस बार उन्होंने पकड़ा और शरीर को संतुलन में रखे हुए, दोनों पैरों का जो स्टेप्स है, 64 तरह के स्टेप्स होते हैं, 364 जो अगर देखा जाए तो मूवमेंट्स होती हैं हाथों की। अभी भी सर्किल के बीचों बीच वहाँ पर ये दोनों इस मुक्ना बाउट में, जिसमें नवा कुमार बाएं तरफ आपके स्क्रीन में लाल रंग की किसी, और ये पुल करने की कोशिश वहाँ पर नवा कुमार की, ये पीठ लग गई, लगता है कि नवा कुमार की पीठ लगी है। और ब्लैक किसी में जो ब्लैक बेल्ट में है माइक सक्सेना, शायद वो विजय घोषित किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रेफरी का निर्णय सबसे अहम, और ठीक वही हुआ, माइक सक्सेना यहाँ पर घोषित किए गए विनर इस बाउट के। So things are ending pretty quickly here. I think that time limit that has been given to them, working on their mind, they want a decision quickly. If they had more time, they would have probably wanted to, linger on, get a good grip. But in this case, there is no time. So the next bout will begin, and the men in the middle are Mayang Lampan Sagar of Kakching and Namai Rakpam James of Oinam. Namai Rakpam James in red and Mayang Lampan Sagar. जमीन पर पैरों की मजबूत पकड़ और प्रतिद्वंदी पहलवान की क्षमताओं का आकलन भी बेहद जरूरी है। हर पल हर एक दांव की जोर आजमाइश होती है। मानसिक क्षमताओं का उपयोग कर खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की चालों का अनुमान लगाते हैं। जरा सी ढील खेल का रुख बदल सकती है और खिलाड़ी जीती हुई बाजी हार भी सकते हैं। Namai Rakpam James is the man who's won this. He is the Mai Pakpa, the winner.
रेफरी ने चांगू कहकर दोनों को बुलाया और ये हैं मोकनाइरो खिलाड़ी। वहां पर 1 मीटर आप देखेंगे बीच में एक सेंटर पे एक लाइन है, वो 1 मीटर दूर एक दूसरे से वो दोनों खिलाड़ी खड़े रहते हैं। लगता है वो कोई पहने हुए हैं इसलिए रेफरी ने उसे बांधा। गीट देखते हुए ब्लैक में है आपके सोमरजीत और लाल किशी में अमरजीत। किशी कहते हैं बेल्ट को, निंगरा भी कहते हैं। ग्रिप देखते हुए रेफरी, दोनों सही जगह पे ग्रिप करना होगा। आप इसमें फ्रंट जो है हिस्सा है वेस्ट का वो पकड़ते हैं, फ्री होल्डिंग होती है। और सुआ कहकर रेफरी जो है वो शुरू करते हैं। कभी हॉरो कहते हैं, हॉरो को भी कहते हैं स्टार्ट को सुआ, और जब रोकना होता है तो लेपो कहते हैं। ये काले रंग का जो है वो सोमरजीत और अमरजीत के बीच। अमरजीत लाइरन जाम के हैं और खमलाबुंग के हैं सोमरजीत। दोनों ही सेंटर में 1 मीटर एक दूसरे से अलग रहते हैं। टाई होने पर 3 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। अपने बाएं तरफ घूमने की कोशिश वहां पर सोमरजीत की, शायद कंफर्टेबल हो बाएं तरफ। बहुत ज्यादा दोनों पैरों को फैलाए हुए हैं वहां पर सोमरजीत, लेकिन संतुलन बनाए हुए हैं। पीछे हटते हुए वहां पर अमरजीत, 1-2 कदम और पीछे हटे अमरजीत। एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश अमरजीत की, जो लाल किशी में है। अच्छा स्टांस लिया था शुरू में दोनों ही खिलाड़ी ने, खासकर सोमरजीत की तारीफ करना होगी। सर्किल जो है वो 6 मीटर व्यास है, जो इनर सर्किल है, और आउटर 7 मीटर। और ये पटकारी देने की कोशिश, गर्दन वहां पर पकड़ रहे हैं वहां पर, और छोड़ा उन्होंने। दोनों बराबर का, ये लाल वाले हार गए यहाँ पर। अमरजीत और सोमरजीत यहाँ पर विनर होंगे, जो कि काली किशी में आपके स्क्रीन के दाएं तरफ सोमरजीत। Yes, and another bout comes to an end. The Mukna Roy paying respect. There you have in slow motion, you saw that landing heavily there. These are tough men. Now for the next bout, the referees are changing. Chief referee is E. Lukoi. Central referees, the referees in the middle, M. Jivan Kumar and L. Paka. And line judges are Chandra Mohan and Mani Sena. So these are the gentlemen who will be supervising the next few bouts. And the next bout is between Ning Thao Jam Bor of Hayrock and Wycombe Jackie. Wycombe Jackie in red. All the winners moving to the next round. Ning Thao Jam Bor of Hayrock in the black Kishi. Both of them going low, both of them trying to keep their feet away from their opponent. A lot of locking. Locking, of course, is Jackie is from Cairo, the man in red, Keshi. And the whole lot of locking is called low in Manipuri, which is like you see in proper wrestling. Look at that. He had lifted him, but in this occasion can't have him fall. Last month from Aizawl, when we brought the indigenous games of Manipur, Mizoram to you, you saw a similar wrestling bouts, but also very different. There you had, the intention was to lift
your opponent off both feet. Here you'll have to make him fall and pin him on his back, and that is the aim. Both of them, they will get 5 minutes to start with. If there's no results, the dignitaries on the dais, and the battle goes on in the middle. Both of them lying low, looking for that opportunity. Who will extend that foot and try to get a lock? There are 62 or 64 different kinds of locks that you can employ, and they are practiced and practiced till you get it right. There you are. There you see, he did get it right. And this was a lift and a drop, and I can tell you a heavy landing there. A heavy landing, and that's why the referee is just checking the head. There was a huge heavy landing. The two referees in the middle, you can get winded. The ground, pretty heavy ground, so he might need a little bit of medical attention. Jackie that was falling. So the winner is Ningthokjam Bor of Heorok. Both of them, he looks okay, but we'll have it a little bit checked, because there it was a big fall. It was lifted and then dropped. और अब एक और बाउट आप देखेंगे, ये आप स्लो मोशन में देखेंगे आप इस बाउट को। जैकी जो कि रेड में है, लाल किसी लाल बेल्ट कहा जाएगा। बेल्ट का भी एक व्यास होता है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर ये बाउट जो कि किसान जो कि काले रंग की किसी में है बेल्ट, और उनका मुकाबला हो रहा है वाईकॉम शिवा जो कि ओनाम के हैं। रेफरी ने सुआ बोल के शुरू किया ये बाउट, और इसमें आपके स्क्रीन के बाएं तरफ है शिवा, वाईकॉम शिवा। लिफ्ट करने की कोशिश, उन्हें गिराना होगा पटकनी मार के, और ये खुद को संभाला वहां पर किसान ने, लाइश्राम किसान कोशिश कर रहे हैं जरूर वहां पर शिवा उन्हें गिराने की, लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं पूरा अपने स्टेप्स पर काबू किए हुए हैं शिवा, वाईकॉम शिवा जो कि रेड किसी में, लाल रंग की किसी में। एक बार लॉक करने की कोशिश की, दाएं पैर से लॉक करने की कोशिश की थी शिवा ने, लेकिन पीछे हटे थोड़ा सा। एक बार फिर उन्होंने दायां पैर जरूर उठाया था शिवा ने, और लिफ्ट करने की कोशिश एक बार नाकाम रहे वहां पर किसान, लाइश्राम किसान खंगाबोक के, दोनों ही बीच सेंटर में। बराबर का मुकाबला दोनों खिलाड़ियों को भी लगता है ये वो मुकाबला है जो कि दूसरे राउंड में जा सकता है। 5 मिनट का पहला राउंड, फिर 1 मिनट का अंतराल, और फिर 5 मिनट का दूसरा राउंड, और इसके बाद भी अगर कोई खिलाड़ी किसी को नहीं गिरा सकता है तो वो फिर टाई में चला जाएगा। 3 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, तो इस तरह से 5, 5, 10 और 3, 13 मिनट का बाउट हो सकता है ये। दोनों ही खिलाड़ी बराबर का मुकाबला। इस बार पीछे की तरफ पुश करते हुए वहां पर किसान, और सामने की तरफ खींचकर वहां पर किसान ने शिवा को पटकनी देने की कोशिश की थी, लेकिन शिवा का फुटवर्क आप देखिए, मजबूती से वहां पर जमाए हुए अपने पैर को, और स्पेसिंग एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है खुद को संतुलन वहां पर रखने के लिए, ताकि गिरे नहीं। कभी कभी आप अपना स्टेप्स आगे पीछे करते हैं ताकि आप गिरे नहीं। इस बार देखिए उनका बायां पैर बाहर थोड़ा सा पीछे की तरफ, इस बार पटकनी देने की कोशिश की, घूम कर वहां पर बचे किसान, और एक बार फिर किसान ने वहां पर उन्हें पुल किया। संघर्ष करते हुए दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर इस मुकना बाउट जो कि आप ओलंपिक फील्ड्स
हॉकी ओलंपिक ग्राउंड यहाँ पर आप देख रहे हैं मणिपुर के इम्फाल में। और एक बार फिर पुल करके वहाँ पे गिराने की कोशिश की किसान ने, लेकिन सतर्क थे और खुद पर काबू रखा था शिवा ने, वाइखम शिवा ने, जो कि रेड लाल रंग की किशी में लाल बेल्ट। बराबर का मुकाबला लगता है, ये मुकाबला दूसरे राउंड में जाएगा। और इस बाउट के जो चीफ जूरी हैं वो लखोई हैं। 2 सेंट्रल रेफरी वहाँ पे जीवन कुमार और पाका, देखते हुए, बहुत नजदीक से देखते हुए पाका, दोनों का लॉक देखते हुए, ग्रिप देखते हुए किसान ने अच्छी वहां पर पकड़ बनाई हुई है शिवा के बेल्ट पर। और लॉक द्वारा वहां पे बाएं पैर से वहां पे लॉक किया और लगता है कि ये लाल में जो है वो विनर घोषित किए जाएंगे, वाइखम शिवा। अच्छा लॉक वहां पर दिखाया था शिवा ने, इस तरह से शिवा यहां पर जीत गया। और दोनों ही खिलाड़ियों को खोरम नाव कहा रेफरी ने, और दोनों ही वहां पर दोनों ने प्रणाम किया चीफ जूरी लखोई को। So the next, this is between Mayanglamban Sagar of Kakching and Chirom Sushil Kumar. Sushil Kumar in red, and Sagar of Kakching in black. Kishi. Kishi, of course, the belt, and that is what both of them are holding. That is the position you have to start, and the aim is to get your leg in there and get into a lock. So both of them careful that the opponent's leg doesn't come too close to his. There are various types of locks. About 30 of them are offensive locks, another 30 of them are defensive locks. So even if you get locked by your opponent, you can do something and come out of it. There you are, he's lifted, no. He landed on his chest, so yes, we have a decision. And the referee says this goes for the red.
Shirom Sushil Kumar wins this bout and goes into the next round. There you are, you saw that again on the replay. And the next two wrestlers are in the ring. और अब यहाँ पर लाल किशी में इबू चौबा और काले रंग की किशी में है पुनिल कांता। लिफ्ट करने की कोशिश आ रही है, पटकनी देंगे। वहां पर लाल वाले ज्यादा हावी नजर आते हुए, ये लाल लगता है कि हावी थे शुरू ही से और 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने ये बाउट जीत ली। देवानंदा विनर घोषित किए गए यहाँ पर। ये देखिए स्लो मोशन में बाएं तरफ वहां पे उन्होंने पटकनी दी देवानंदा ने। और एक और बाउट खुरामू कहकर वहां पे दोनों ही जो खिलाड़ी हैं मोरेंगथम और निंगथौजम, लाल रंग की किशी में निंगथौजम, मोरिंगथम, पुनिल कांता। थांगा के हैं निंगथौजम जो कि लाल रंग की किशी में है। इस बार ब्लैक ज्यादा हावी है और ये अभी भी रेफरी का निर्णय आना बाकी है। लेपो कहकर रोक दिया उन्होंने, स्टॉप किया। और रिप्ले, दोनों हाथ एक साथ वहां पर जमीन पर रखा था निंगथौजम ने, ये देखिए। और लेपो कहा रेफरी ने, एक बार फिर शुआ करके स्टार्ट किया रिप्ले। खंगा बॉक के हैं मॉरिंगथम, ये मुकना, ये कुश्ती जो कि जूडो, दोनों को अलग किया रेफरी ने वहां पर। और यहाँ पर ये निर्णय आ जाएगा क्योंकि लाल के वो जो निंगथौजम इबौचौबा हैं उन्होंने ये बाउट जीता। दोनों ने वहां पर प्रणाम किया। खुरम 9 कहा था वहां पर रेफरी ने, सेंट्रल रेफरी ने, और विजय घोषित किए गए निंगथौजम इबौचौबा। You're watching the Mukna competition from the Indigenous Games Festival of Manipur, being held here at the hockey ground of the Manipur University in Imphal. And the next two wrestlers known as Mukna Rois, they come here, and the man in black is Thangjam Kiran of Thongjao, and the person in red is Maibam Amar of Santong. There you have the referee ensuring they're right in the middle. Both of them holding the kishi and trying to get that leg in for a lock. The lock is called low in Manipuri. So who will get that leg in? Who will be the first? 5 minutes and then another 3 allowed. If you don't have a fall, then they both will be disqualified. Both of them trying to get a good hold of themselves. In most wrestling competitions, or even in competitions like judo, you use the weight of the opponent sometimes to your advantage. It's all about fulcrum, center of gravity, turning it. So there's a technical side to it. But of course this was all known in the ancient times. Maybe they didn't have all these words like gravity and balance and these kind of things, but they knew what they were doing. And here
the two fighters, the two Mukna Roys, are trying to knock each other off. Knock means pin them down on the ground. There has to be a fall. And pretty much an even game till now. And look at this, and the referee has blown the whistle. You're allowed to do many things. There are certain things you can't do. So, but yes, the referee has a decision, and the decision goes in favor of the man in black, which is Thangjam Kiran of Thongjao. So he's the winner, and he moves on to the next round. Both players, there you see in slow motion, he had him by the neck, got a grip, and now he has him on the ground. So that was good enough for the referee. The referee says the man in black has won. ये दूसरी बाउट जो कि कोयम राजेन और मोटुम नंद कुमार के बीच है। नंद कुमार वहाँ पर स्क्रीन में बाईं तरफ लाल रंग की किसी बेल्ट को कहते हैं, और हर राउंड 5 मिनट का होता है। 2 सेंट्रल रेफरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो जीवन कुमार अफाका हैं, और शुरू से कोचिज वहाँ पर, और कोशिश की थी ज़रूर वहाँ पर राजन ने ब्लैक में, लेकिन राजनी की पीठ वहाँ पर लग गई ज़मीन पर। इस तरह से शायद नंदा कुमार यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, नंदा कुमार यहाँ पर विजय घोषित किए गए। So the very interesting part of that bout was that Nanda Kumar won, but his opponent actually had made the first move. But Nanda Kumar converted that into his own advantage. Look at that. He just turns his body and takes Shanti Kumar of Kakching, takes Rajan to the ground, and he's won this. So this was a nice tactical move by Nanda Kumar. And the next bout in black is Naurem Shanti Kumar of Kakching, and in red is Loitongbam Vinod of Mayang Imphal. And the spectators are enjoying this indigenous games here, which is into the second day here at the
hockey ground of the Manipur University of Imphal. The judges say, blow the whistle, and the bout starts. And here you can see that bout. The man in red Vinod in red and Shanti Kumar in black, both of them trying hard. Who will get a proper hold or a proper low? Low is of course the locking with the leg. The Mukna also has mentioned in the mythology of Manipur. There was this person who turned himself into a horse and tried to destroy things, and he was stopped. And sometimes they say the Mukna Roys try to do exactly what was done to that horse, trying to pin that horse down to the ground. So a lot of mythology, a lot of culture. These are the sports that rise from the ground with a strong scent of the soil. And we are watching the Mukna, the wrestling of Manipur. Those who have watched judo, there's a little bit of judo in this, if you see, because judo also you try to disbalance your opponent by using your leg, and you are also there, also your grip cannot change because you are here. They are holding the belt. In judo, of course, that gown that they wear. See the judge behind, waiting, watching. They cannot leave that 7 meters diameter circle. There you have, somebody's made a move. Will we see a fall? Yes, we have seen a fall. And it looks like the man in black is going to win. But we have to wait for the referee's signal. And black wins, so it's Naurem Shanti Kumar of Kaching who moves up. And he's the Mai Pakpa, which is the winner. स्लो मोशन में देखिए किस तरह से वहाँ पर शांति कुमार ने यहाँ पर विजय यहाँ पर सम्मान प्राप्त किया। और एक बार फिर ये दूसरी बाउट जो कि रोमिन खांगाबोक्के और निरंजन के बीच यहाँ पर रेफरी दोनों का ये गीट देखते हुए, जो बेल्ट पहने हुए हैं जिसे किशी कहते हैं, निंगरी भी कहते हैं, और सुआ कहकर रेफरी ने यहाँ पर शुरू की ये बाउट। लाल रंग की वहाँ पर जो किशी है वो रोमिन की है, और निरंजन आपके स्क्रीन के निरंजन है लाल रंग के किशी में आपके स्क्रीन के दाएं तरफ, और रोमिन बाएं तरफ। 6 मीटर का जो वहाँ पर व्यास है वो ये लॉक करने की कोशिश की थी बाएं पैर से, वहाँ पर रोमिन ने सफल नहीं हो पाए, पीछे की तरफ हटे वहाँ पर जरूर वहाँ पर रोमिन, लेकिन एक बार फिर बीच में वहाँ पर खींच लाए हैं निरंजन शर्मा। पहला लॉक नाकाम गया था रोमिन का, बाएं पैर से वहाँ पर लॉक करने की कोशिश की थी, शोल्डर द्वारा दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश और लिफ्ट करने की कोशिश ताकि वहाँ पर गिरा सके। और ये लगता है कि पीठ पहले लगी वहाँ पर लाल रंग के शर्मा की। इस तरह से रोमिन यहाँ पर शायद देखना होगा रेफरी को, यहाँ पर सेंटर रेफरी क्या निर्णय लेता है। जी हाँ, रोमिन यहाँ पर जीत गए हैं इस बाउट में। So we are watching this. There you are in slow motion. There, the back touching the ground. So the man in black winning again. The next bout is between Chirom Surjit of Waikong and
Heshnam Anthony of Thanga, who is in red. Heshnam Anthony in red and Chiram Sujit in black. Both of them trying. Who is it going to be? Chiram showing an initiative. There you see the leg lock and down he goes. So Heshnam Anthony working with a nice lock there. His hand goes up. He is declared the Mai Pakpa, the winner. So, and he goes on to the next round. And this is, you can see that in slow motion. It was a very, very quick end to the bout. There you are, landing straight on the referee, had no problem there. तो इस तरह से हिशम ने वो बाउट जीती और एक ये पारंपरिक वहाँ पर ड्रेस मणिपुर का पगड़ी, इस बाउट में काले रंग की जो किशी है वो अमुथोई है और लाल रंग की किशी में मिलन, दाएं तरफ अमुथोई। और ये सर्किल के बाहर जाते हुए रेफरी ने लेपो कह के दोनों को रोका कि आप वो जो 6 मीटर का जो आप देख रहे हैं अंदर का व्यास है, एक और सर्किल है वो 7 मीटर का व्यास है, आपको उसके अंदर ही रहना होगा। दोनों को वार्निंग दी, दोनों ही बाहर चले गए थे। एक बार फिर वहाँ बीच में दोनों को ले आए सेंट्रल रेफरी आज के जो कि जीवन कुमार पाका हैं। अमोथोई काले रंग की किशी में वहाँ पर खींचने की कोशिश करते हुए ताकि उन्हें डिसबैलेंस किया जाए, लेकिन उनके पैर जमे हुए हैं वहाँ पर मजबूती से, वहाँ पर शोल्डर वहाँ पर ज़्यादा नीचे की तरफ झुके हुए मिलन, आहिबम मिलन जो कि खियामगाई के हैं, एक दूसरे को परखते हुए थोड़ा समय लिया दोनों ने, दोनों की जो शक्ति है जांचते हुए। और ये लॉक करने की कोशिश, बाएं पैर से वहाँ पर लॉक किया मिलन ने और ये पटकनी दे दी मिलन ने अमुथोई को। तो मिलन यहाँ पहली राउंड में घोषित किए जाएंगे, जबकि 5 मिनट का ये राउंड होता है, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही वहाँ पर मिलन ने ये बाउट जीती। To the end of another bout, and there you see now, there in slow motion, nicely done there, landing on the back. So we are coming to the end of this contest of Mukna with the last bout coming up. And they are in the more traditional attire. On the head is the samjin, the headgear, and on the back is the ninkham. So the traditional there, the last bout, a little bit of demonstration there too. So showing how it was all done in those olden days. It is wonderful that these indigenous games are being kept alive in Manipur, and we saw that in Aizawl as well in Mizoram. So many associations doing their work to keep these games alive. These games date back long time to the 15th century, the early 15th century and beyond. There's mention of this in the mythology of Manipur. This is the last bout, and it's called the Jatra. It is between Laishram Ranjit in black and Khaidam Ajit of Mayang Ampal in red. There you see they came in those traditional attire, and in this of course you are not allowed to wear
anything above your waist. जी अरूप, वो जो पहने हुए हैं जो हेड गियर है वो शामजीन है, और जो बैक क्लॉथ जो है पीछे की तरफ है वो निंगखम है। So here they are, bare-bodied in their kishis, each of them holding the other's kishi, and soon they will try to turn the other, his opponent. 5 minutes allowed. This is the last bout of the Mukhna competition, but there's more to come, so stay tuned in. मुकना में दर्शकों का उत्साह भी देखते ही बनता है। दर्शक अपने पसंदीदा पहलवान का समर्थन करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। 5 मिनट का ये राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता जाता है। बीतते हुए हर पल के साथ दर्शक ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा पहलवान भारी पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी बाजी पलट भी जाती है और करामाती दांव के बल पर कमजोर पहलवान भी भारी पहलवान को पटखनी दे देता है। There you are, we have a decision, and it looks like the man in red, Khaidam Ajit of Mayang Imphal. It was very clear there. The judge will soon put up his hand, and he is the winner, the Maipak Power. And that is the end of the Mukhna competition. There you can see it in slow motion again. There he lifts him, turns and puts him down there. Nice technique there, nice technique. Using the weight of your opponent. That's what all this, even in modern sport, where slow motion and other analytical tools are there, they do a lot of research on this, and it is about how you can tilt that center of gravity of your opponent. And these gentlemen and ladies and children all coming here to enjoy this wonderful exhibition. And dedication.